how are you all? This video is related to the new chapter of Indian economy, that is human capital formation. Okay. Now the question comes, first we should know what is human capital. Okay. How it is different from human beings and human capital. How are they different? So it's like humans, we all are humans, so no need to tell that. When we become capital, when I gain some skills, some expertise, and I am able to earn money for myself. So that's I became the capital. I am the capital. Now how can I be the capital? I have to get the skills, the knowledge, education, only then I will be able to earn some money. Otherwise, I am just the crowd. Alright. Very soon China realized that they have huge population, human beings. They have huge population. That time they were not able to control that. After one child policy they were able to. So at that time they had huge population. Rather than cribbing and sitting on this topic that how to control, what to do, population is a curse, discussing about this, they very soon turned towards converting human capital, humans into human capital. They started giving them education, they started giving them expertise or skills or vocational knowledge so that they can become the human capital. And rather than becoming burden on the country, what will happen? They will start earning money. तो अब वो क्या बन जाएंगे? They will no more be the liability on the nation, they will become the assets of the nation. Okay, they will be the asset of the nation. So this is how we can understand the word human capital and why it is important. So I'm sure you get to know why it is important to convert crowd to human capital. They can earn their livelihood on their own, they are not dependent on the country, they are not dependent on their family. So इसलिए उन्हें skills पढ़ाना लिखाना आपको आपके पेरेंट्स क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि they want you to be human capital in long run. अब ये किसका डिपार्टमेंट है? HRD मिनिस्ट्री. आई एम श्योर हमें पता है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट is the ministry which plays very important role towards that. एजुकेशन का जो सारा सिस्टम है वो HRD के कंट्रोल में होता है. Okay, so I am starting with this topic. You have the handouts with you. So the very first question which is written here is, what do you understand from the term human capital? So what is human capital? आप underline कीजिए इन keywords को. It is the stock of. When I say stock means इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. When I say stock means इसमें skills, stock of means there is accumulation or pilation of skills. आप जितना skills enhance करेंगे अपने उतना आप ज़्यादा क्या कहते हैं, स्कोप आपका अर्न करने का बढ़ जाता है. बिकॉज यू नीड टू हैव सर्टेन स्किल्स. एक्सपर्टीज, किसी भी काम में एक्सपर्ट हो जाना, एजुकेशन, नॉलेज, ये सब गेन कीजिए. इससे आप ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल में टर्न हो जाएंगे. नाउ इन द NCERT they have talked about two types of capital, that is human capital and physical capital. तो इसमें difference chances are very high that this comes in different form only. So you have to make a tabular format for that and then you are supposed to write. पहले इसका difference समझ लेते हैं होता क्या है. Human capital तो मैंने आपको समझा दिया कि stock of skills, expertise, experience, knowledge, education, ये सब आपको human capital बना देगा. What is physical capital? Physical capital means जो हमारी assets हैं. Okay? Machinery is our asset. जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, AC is physical capital, I am human capital. अब आपको कहता है आप अपने आप को AC से कंपेयर कीजिए, या I am in a factory and there is a machine through which I am producing something. So compare yourself with this machine. Alright? बड़ा सिंपल है. कैसे? क्या मशीन अपने आप बताती है कि मेरा बेस्ट यूज कैसे होगा? No. It's a passive asset which doesn't tell you that how can this be utilized. उसको तो ऑन भी करना हो तो हम करते हैं, वो नहीं मुझे बताती भाई 9 बज गए ऑन करो मुझे.
So it's a passive form of asset, or of course it is used for further production. ऐसा ही बनाती है एक मशीन हमारे लिए, लेकिन ये कौन सा कैपिटल है? पैसिव फॉर्म है। ये एक्टिव फॉर्म है, इसको नहीं बताना पड़ता कि भाई सुबह हो गई उठ जाओ पढ़ लो, अपना बताना पड़ता है। अगर बताना पड़ता है तो आप फिजिकल एसेट के पार्ट हो गए, ह्यूमन के नहीं, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल को हम एक्टिव मेंबर कहते हैं ऑफ प्रोडक्शन। I'll keep on doing this so that थोड़े पिंच लगने चाहिए। So human capital क्या हुआ बच्चे? Human capital एक एक्टिव पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक्टिव मेंबर है, जिसे नहीं बताया जाता कि भी 9 बजे ऑन हो जा, वो ऑटोमेटिकली उसको पता है और वो डिसाइड करता है। दूसरा, सपोजिंग लैंड, मशीनरी, ठीक है, इनका ये फिजिकल एसेट्स हैं, इनका बेस्ट यूज क्या है? दे डोंट नो। अगर ये लैंड और मशीनरी किसी पढ़े लिखे, एजुकेटेड या जिसके पास स्किल्स हैं उसको दे दी जाए तो प्रोडक्शन का लेवल वो चेंज कर सकता है। द सेम लैंड एंड मशीनरी if it is handled by an illiterate person who has no skills will have no production या no growth, but at the same time when this physical capital is handed over to a person who is expertise in who has got expertise in that, तो वो शायद उसकी प्रोडक्शन को कहाँ चेंज कर दें। दोनों। अब आपसे मैं पूछती हूँ जी, प्रोडक्शन के लिए कंट्री की ग्रोथ, क्योंकि हम तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, कंट्री की ग्रोथ के लिए इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? आ सकता है पेपर में। आप बताइए जी, कंट्री की ग्रोथ के लिए ह्यूमन कैपिटल अच्छा है या फिजिकल कैपिटल अच्छा है? बोथ है या नन है? इट्स बोथ। ह्यूमंस हैं लेकिन एसेट्स नहीं है, तो क्या कर लेंगे? उतना ग्रोथ की बात करें, कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं, ग्रोथ। सो अब हमारे पास बहुत मशीनें हैं लेकिन लोग ही नहीं हैं काम करने के लिए, तो भी नहीं होगा। अमेरिका जैसी कंट्री के पास बहुत मशीनरी है लेकिन लोग कम हैं, कनाडा के पास लोग कम हैं, तो हमारे यहाँ से जाते हैं ना, तो इट मींस इट हैज टू हैव अ गुड बैलेंस बिटवीन बोथ, सो प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी कंट्री की ग्रोथ के लिए, राइट? चलिए एक एक करके मैं आपको ये डिफरेंस समझा देती हूँ। सबसे पहले डिफरेंस में तो आपको हमेशा ही मीनिंग लिखना होता है। इसका मीनिंग आपको पता है, स्टॉक ऑफ स्किल्स, एक्सपर्टीज, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो याद करना है। दूसरे का मीनिंग क्या है? ये वो एसेट्स है व्हिच आर हेल्पफुल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल गुड्स का नाम है फिजिकल कैपिटल, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री, सब वो चीजें जो प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होती हैं। यहाँ रॉ मटेरियल भी लिखा है क्योंकि ये टर्म स्पेसिफिकली कैपिटल गुड्स नहीं है, फर्म की गुड्स की बात कर रहे हैं। ओके, देन एक टर्म हम यूज करते हैं टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल समझते हैं ना, व्हिच कैन बी टच्ड, सीन। ओके, तो किसको देखा जा सकता है? एसी को या मेरी नॉलेज को? कैन यू सी माय नॉलेज? यू कैन ओनली फील दैट। सो ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल इन नेचर, यू कैन ओनली फील। When you will talk to me, you will understand, हाँ यार आता है, मैम को पता है यार ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करो तो ठीक, लेकिन you can't see my knowledge. If I just pass close, if I just sit there in the room और आप अभी मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आपको पता चल जाएगा कि मुझे नॉलेज है भी या नहीं पता चलता। So AC को देख के पता चल जाता है ये AC है, you can touch and see. This is board, I can see, है ना? So तो ह्यूमन कैपिटल intangible है, फिजिकल कैपिटल tangible है। डेप्रिसिएशन किसकी होती है दोनों में से? एसेट्स की तो होती है, ये हमें पता है, यानी फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट होता है? नहीं होता। हम बूढ़े नहीं होते? होता है। हमारी एफिशिएंसी भी कम होती है, लेकिन इट कैन बी मेंटेन्ड इफ आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन माय knowledge, my what do you say, qualification, or and especially on my health as well. अब मुझे बहुत क्वालिफिकेशन मैंने कर ली, पीएचडी पढ़ ली, सब कर लिया, लेकिन आई एम लाइंग ऑन द बेड, आई एम बेड रिडन, नो यूज। सो इफ आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन माय हेल्थ, इन माय नॉलेज, इन माय एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, तो यस डेप्रिसिएशन उतना ज्यादा नहीं होता, बट दिस आल्सो डेप्रिशिएट्स। ऑलराइट, ठीक है जी। देन कौन सा मोबाइल है? ये वो वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब मोबिलिटी होता है, किसको आप मूव कर सकते हैं।
हाँ जी बोलिए, कौन सा लेस मोबाइल है, कौन सा मोर मोबाइल है, बताइए जी. Humans are less mobile, जबकि physical asset is more mobile. Okay, so it's something like I have certain limitations. I will not go to that everybody's house and teach. I can't go there. Or it's something like foreign में machine foreign से मंगानी है, तो आप machine मंगाना आसान है या बंदा मंगाना आसान है? So you got the answer. So less mobile है human, more mobile between the countries is physical capital. Human capital cannot be separated from the owner. Physical capital can be. Next point. ये क्या मतलब हुआ? Physical capital owner से separate की जा सकती है. Say for example, I have this asset. What do you? चलो, I have this asset. I have a book. This is my asset. ठीक है? तो आपने मेरे से बोला मुझे दे दीजिए. So I gave it to you. Now the owner of this asset is changed from A person to B person because I detached this from myself. अब हुआ क्या? सेपरेट हो गया. AC मेरे पास लगा है, आपने कहा मुझे चाहिए, मैंने आपको सेल कर दिया, वही आपका हो गया. लेकिन ह्यूमन कैपिटल के केस में नॉलेज ट्रांसफर कर रही हूँ मैं, अपनी डिग्री नहीं. इसका मतलब ओनरशिप जो है जिसके पास है उसी के पास रहती है. ओनली आई एम गिविंग यू, जैसे डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर ओनली gives you the consultation, not his degree. So you're only consulting that I have this problem, what should I do? So what does this mean? मेरी knowledge की ownership मेरे पास ही है, that I have not transferred to you. I'm just passing the information or knowledge to you. I'm sure clear होगा. चलिए आगे. Formation of human capital is partly a social process and partly a conscious decision. जबकि physical capital पूरा का पूरा conscious decision है. क्या मतलब? Conscious decision. मैंने कार खरीदनी है या नहीं, ये decision कैसा है? A conscious decision. So I am buying a physical asset in my firm. So I am just making a conscious decision. ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, need है क्या है, और मैंने ले लिया. सोशल डिसीजन तो बिल्कुल नहीं. वोटिंग कराई, मुझे गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं रिश्तेदारों से. Oh no, please, it's a conscious decision. Whether I should have a machinery in my factory, it's a conscious decision. How come human capital is a social as well as conscious? Conscious तो है, आपके पेरेंट्स कॉन्शियस थे, इसीलिए उन्होंने चूज किया आपको स्कूल भेजना, अपने हिसाब से सबसे बेस्ट स्कूल चूज किया और वहां भेजा. सोशल डिसीजन इसलिए भी है, अगर इमेजिन करिए आपको स्कूल नहीं डाला जाता, आप इस टाइम क्लास 11th 12th में ना होकर आप घर में बैठे होते, तो लोग जब आपके घर में आते वो कहते जी आप कौन से स्कूल जाते? मैं तो स्कूल नहीं जाता. स्कूल नहीं जाते आप? फिर आपके पेरेंट्स को बोला जाता आप स्कूल नहीं भेजते. इट्स समथिंग लाइक जब आप किसी अपनी डोमेस्टिक सर्वेंट से पूछिए कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कहते नहीं. क्यों नहीं भेजते आप उनको स्कूल? भेजना चाहिए. अब ये सोशल आ गया ना, सोशल प्रेशर. क्यों नहीं भेजते? यू मस्ट सेंड इट टू देम. गवर्नमेंट इज गिविंग फ्री एजुकेशन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? It's the social obligation as well that if your child is not going to school, it's not good. So it is a both conscious decision as well as social. हमने पढ़े लिखे पेरेंट्स ने conscious decision के अंडर किया, लेकिन बहुत बार social decisions भी होते हैं जिसमें हमें जो है human capital formation, जैसे poor लोगों को हम insist करते हैं no they should study, नहीं तो ये भी तुम्हारी तरह ही less earn करते रहेंगे, तो इन्हें भेजो स्कूल भेजो. तो socially ये ऑब्लिगेशन होगी उनके ऊपर कि दे मस्ट सेंड इट टू देम. हमारे ऊपर भी है, अगर हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाता तो लोग पूछेंगे, तो लोग ना पूछे इसलिए भी भेज देते हैं आधे लोग. देन ह्यूमन कैपिटल इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ऑलमोस्ट वन द सेम थिंग, बट दूसरे में इट कैन बी डन थ्रू इंपोर्ट्स आल्सो. फिजिकल कैपिटल तो इंपोर्ट से भी फॉर्म हो जाती है, वही नहीं है मशीनरी तो मंगा लेते हैं दूसरे देश से, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में दूसरे देश से मंगा लेंगे नहीं. उसको कॉन्शियसली पॉलिसीज, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, पॉलिसीज बनाकर उन्हें बनाया जाता है. गॉट इट? सो वी आर डन विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट्स मूव फर्दर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? बिकॉज़ द चैप्टर्स नेम इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अभी तक क्या बात की आपने? ह्यूमन कैपिटल. हाउ कैन यू फॉर्म ह्यूमन कैपिटल? दैट्स द क्वेश्चन. सो आप बताइए क्या करेंगे जी. It refers to the development of population को, जो लोग हैं उनमें skills डाल दीजिए उनको. तभी तो government has introduced vocational training, vocational courses. आप +2 कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चों को नहीं पता होता करना क्या है.
किस लाइन में जाना है, कहाँ जॉब मिलेगी, मेरे पास स्किल है भी कि नहीं है, तो ये आइडिया नहीं होता। सो अब गवर्नमेंट कहती है 6th से बाद ही आप अपने वोकेशनल कोर्सेज चूज कीजिए कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ना है, आपको कोडिंग पढ़ना है, आपको कंप्यूटर में जाना है, आपको क्या पढ़ना है, बिजनेस में जाना है। इकोनॉमिक्स के एडवांस कोर्सेज बीच में डाले हैं, देयर आर वेरी गुड कोर्सेज। इनफैक्ट हेल्थ के लिए योगा कोर्सेज आर इंट्रोड्यूस्ड। सो व्हाट डज दिस मीन इज, सो यू कैन चूज द वोकेशनल कोर्स एज वेल। सो दैट मीन्स एबिलिटीज, स्किल्स डेवलपमेंट कर देना, किसमें, पॉपुलेशन में, तो वो बन जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, वेरी नहीं, very important, and chances are very high, more than 80% that this question will come in the paper from this chapter at least. 80% से ज्यादा चांस है, तो आपको पढ़ना देख लो दिखना। अब बोलते हैं जी इसके सोर्सेस क्या हैं, हम कैसे इसे फॉर्म कर सकते हैं। बड़ा ही जनरल क्वेश्चन है, बट इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आर द सोर्सेस through which you can form human capital formation कर रहे हो आप। The very first thing, अभी हम बोल रहे हैं बार बार, एजुकेशन में पैसा लगाया जा रहा है। So expenditure on education can also help us to form human capital. So that's the first point. अगर हम अपने बच्चे के एजुकेशन में पैसा, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, हम भी अपने बच्चों के एजुकेशन में पैसा लगा रहे हैं ताकि ये अपनी लाइफ में कुछ बन सके, ऐसे ही बोलते हैं ना पेरेंट्स, तो हम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको क्या फॉर्म कर रहे हैं, हम आपको ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं ताकि कल को आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। ओके, proper first heading है जी, expenditure on education, proper utility of manpower depends on system of education and training of people. Labor skill of an educated person, क्यों लगाना है, क्योंकि बोला एक अनएजुकेटेड बंदे से किसके स्किल्स ज्यादा होते हैं बेटा, एजुकेटेड। मैंने कहा था एक पीस ऑफ लैंड को एक इलिटरेट को दे दो और एक लिटरेट को दे दो, उसका कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, है ना। लिटरेट भी, एजुकेटेड कहना ज्यादा बेटर, लिटरेट तो the one who knows ABCD is also called literate, educated is one has degree. So अगर आप एक एजुकेटेड स्किलफुल पर्सन को एक लैंड दे दीजिए, वो तो उसको कुछ ना कुछ उस पे कर ही देगा, rather than that person who's never visited school. Okay, so एक बंदे के लेबर के एजुकेटेड की जो लेबर स्किल्स हैं, काम करने का तरीका और एफिशिएंसी विल बी मोर देन द अनएजुकेटेड। तो आप इसमें ये नीचे पैराग्राफ पढ़ लेंगे, जनरल लैंग्वेज में लिखा है। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। मैंने ना ये बड़ी अच्छी लाइन है, आपके पेरेंट्स ने आप में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बचपन से, मैं जब ये स्कूल में जब हम पढ़ते थे, पढ़ाती थी जब भी मैं क्लास में भी अपने पास, तो आई यूज्ड टू टेल द चिल्ड्रन टू डू वन एक्टिविटी व्हिच आई रियली वांट यू टू डू इट। दैट व्हाट इज दैट एक्टिविटी, आपको ना एक आई ओपनर वो हो जाएगा आपके लिए अगर आप सीरियसली करें। आप क्लास 12 में हैं, बचपन से नर्सरी से आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट, जब से पैदा हुए ना तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। कीपिंग इमोशनल एस्पेक्ट असाइड, ठीक है, आप उसे इमोशंस को मत लाइए, इमोशंस नहीं हम पे कर सकते, पैसे की बात कर रहे हैं। आप जब से पैदा हुए हैं आप में पैसा लग रहा है, आप एक काम करें, आज बैठ के उसकी लिस्ट बनाएं, आपके पेरेंट्स ने आप में कितना पैसा लगाया। तो अब आप अंदाजा ना लगाएं, अंदाजे में तो आप 5, 7, 10 लाख में रह जाएंगे, लेकिन ये करोड़ से ऊपर है, ट्रस्ट में ये है। आप बना लीजिए बस, क्या जब पैदा हुए तब कितना बिल आया होगा उनका, फिर आपने खाया पिया, आपको सेरेलैक खिलाया गया, आपके लिए अच्छे कपड़े आए, चलो आप ये भी छोड़ दोगे ना तो भी बन जाएगा, पता है आपको। फिर कभी चोट लगी होगी, उस पर पैसा लगा, टॉयज खरीदे होंगे, उस पर पैसा लगा, आपके लिए कमरा बनाया, बर्थडे मनाया, ये सब कुछ भी। देखिए इमोशंस छोड़ दो, प्यार से किया, प्यार का तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, वो तो मिलियंस पे कर दो तो भी नहीं होती, उसको नहीं। लेकिन यस दे इन्वेस्टेड। चलो आप सिर्फ एजुकेशन देखना चाहते हो तो एजुकेशन से शुरू हो जाओ, नर्सरी से चालू हो जाओ जरा, नर्सरी की एडमिशन फीस, उसके बाद सारे साल की फीस, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रेप की फीस या एलकेजी यूकेजी जो भी क्या, प्लीज डू मेक इट विल बी अ सरप्राइजिंग फिगर फॉर यू, आई नो दैट। आई हैव ट्राइड दिस मेनी अ टाइम्स इन माय क्लासरूम एंड चिल्ड्रन यूज्ड टू से मैम रियली। फिर मेरा अगली बार का जवाब, अगर इतने पैसे करोड़ से तो ऊपर है, अगर इतने पैसे आपके पेरेंट्स ने चूज किया होता है, एक फैक्ट्री में लगाते हैं, आपको पता है अभी रिटर्न आ रही होती,
12 साल बहुत होते हैं एक फैक्ट्री को चलाने के लिए भाई, 12 नहीं, तुम्हारे में तो 15 हो गए। 15 साल एक फैक्ट्री चलाने के लिए, अभी तो वो स्टेबल होते हैं और करोड़ में नहीं, शायद ज्यादा कहीं हाई 10,000 करोड़ में भी ज्यादा में ही अर्न कर रहे होते हैं। अगर चूज किया होता कि क्या करते, फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते, लेकिन उन्होंने क्या चूज किया, आपने इन्वेस्ट किया। अब मेरी एक बात और इमोशनल समझ लीजिए, जो बहुत जरूरी होती है समझनी। अब होता क्या है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, नर्सरी से इन्वेस्टमेंट की, 10th तक आ गए, वो बेचारे जितने तुम कॉन्शियस होते हो ना वो भी हैं, क्योंकि उनका पैसा लगा है आप में। और दे अच्छा, हमने ऊपर से ना, हमने उनसे वो राइट भी ले लिया पूछने का कि अगर वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करना चाहे, बेटे तुम पढ़ को ठीक रहे हो, दे आर चेकिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हेन कैन दे फाइंड आउट द रिटर्न, एंड व्हाट डू यू से रिटर्न। आप अपना काम कीजिए, क्यों बार बार पूछते रहते हो। फैक्ट्री में नहीं ऐसे होता, फैक्ट्री में तो कोई नहीं ऐसे बोलता। तो अब मतलब क्या है, अब रिटर्न का टाइम है, मतलब they have invested, actually they have invested their time, effort, life in you, and when it comes to class 12, this is such a class where they expect you to work a little hard so that you can reach to a good college and you can reap good fruit, human capital बन जाए ताकि आप कमाने लगे। क्यों they are interested? क्योंकि they have invested in you, they have a right to ask you, as if जैसे आपने एक फैक्ट्री लगाई, आप क्यों पूछ रहे हो फैक्ट्री वालों से काम हुआ कि नहीं, अरे मेरा पैसा लगा है, ऐसे बोलते हैं ना हम, तो ऐसे ही उनका पैसा लगा है। तो जब वो आपसे पूछते हैं ना, अगली बार ध्यान रखिएगा जवाब देने से पहले, they have invested in you huge amount of money, I'm sure it is enough, okay, think about it, निकालना जरूर। okay, do send a message also to me, मैम इतने करोड़ लगा है मेरे में, तो कमाल है। और सोचना, जब ऐसा करेंगे ना आप ये एक्टिविटी, तब शायद आपको एक और मोटिवेशन मिले, yes now I have to do something यार, it's the time where I have to return it to them, okay। चलिए, so आ गया जी, spending on education by individual is almost similar to spending on capital goods by companies, मैंने नहीं बनाया, बुक में है। थर्ड पॉइंट, एजुकेशन contributes to economic growth, वो कैसे, कैसे इकोनॉमी भी ग्रो करेगी तुम्हारे पढ़ने से, कैसे करेगी जी, आप हाई कैपेसिटी रखेंगे कमाने की, जब आप कमाएंगे ज्यादा तो कंट्री भी ज्यादा कमा रही है, योर इनकम इज नेशंस इनकम। सेकंड, बेटर सोशल स्टैंडिंग, आपको सोसाइटी में एक अच्छा प्राइड के साथ जीने का मौका मिलेगा, रादर देन छुप कर रहने का कि मैं तो कुछ कर नहीं पाया लाइफ में, तो आप एक प्राइड से रहेंगे। then enables one to make better choices in life, when you are educated, when you know what to do in life, you make good choices, okay। maybe when it comes to choosing further studies, maybe when it comes to choosing a best income option, इस तरह से। Also stimulates innovation, जो educated होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, जिनके पास कुछ qualifications होंगी, वही innovate कर पाएंगे। जरूरी नहीं है वही करते हैं, exceptional cases are there, but yes, most of the time कहाँ होती है बेटा, साइंटिस्ट ही करते हैं ना इनोवेशन, तो साइंटिस्ट आर एजुकेटेड पीपल, ओके। It provides knowledge to understand the change taking place in society, whatever changes are happening, जैसे it's something like जब डिजिटलाइज हुआ सब कुछ कोविड की वजह से, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन में आए, तो बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस किसने दिखाई, आप लोगों ने, क्योंकि दिस चेंज इन द सोसाइटी यू आर एबल टू एक्सेप्ट। जबकि हमारे बुजुर्ग थोड़ा मुश्किल फील कर रहे हैं, यार ये क्या हुआ, आप लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ा, हमें शायद इतना फर्क नहीं पड़ा, आपसे थोड़ा सा पड़ा क्योंकि हम आपसे थोड़े टेक्नो सेवी कम हैं। सो इट मींस जितनी चेंजेस आएंगे सोसाइटी में, आप उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज द सेकंड मेन हेडिंग। I will cover this heading here, although there are 5 headings in this, rest we will cover in the next video. Health, why health is important? वही कहानी, PhD कर लो लेकिन अगर कोई भी बेड रिडन है, इंजीनियर बन गया लेकिन बेड रिडन है, इज ऑफ नो यूज। इसीलिए आपकी हेल्थ पर भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। मैंने जब शुरू में कहा था सेरेलैक खिलाया, फ्रूट खिला रहे हैं, जो फ्रूट बोलते हैं वो आता है, ऐसे से आता है जी वो। So what does this mean? Actually they want not only to give you, your parents doesn't only want to give you education, they want to give you good health as well. तभी कभी लेक्चर देते हैं, बेटा प्लीज बैलेंस डाइट लिया करो, खाना खा लिया करो, जंक फूड हर टाइम नहीं, कभी खा लिया, इट्स ओके। So they have a right to say that, क्यों? Because they know you will be useless and even you do whatever good education, कहीं से टॉप यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड से पढ़ के आ जाओ, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं, it's of no use. Okay, so health expenditure is a source of human capital formation
as it directly increases. तभी तो बच्चों एजुकेशन के साथ सर्व शिक्षा अभियान के अंदर मिड डे मील को इंक्लूड किया कि बच्चों को अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन वैल्यू न्यूट्रिशनल फूड मिलना इज इम्पोर्टेंट। फिर उन्हें एक गिलास दूध दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, साथ में आयरन की टेबलेट भी दी जाती है ताकि वो हेल्दी रहे। क्यों रहे हेल्दी? क्योंकि हेल्दी होंगे तो फायदा देंगे हमें। पढ़ लिख गए तो और पैसा वेस्ट हो गया अगर अनहेल्दी है तो। समझ गए? चलिए, पुअर हेल्थ एंड अंडरनरिश्ड एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। आप जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन करने जाएंगे ना अच्छी एमएनसीज में, शायद आपकी डिग्री भी ना पूछे, आपसे बात की फाइनल हो गया, उसके बाद कहते हैं आपकी डिग्री सबमिट करा दीजिए, देखते भी नहीं, सबमिट करा दीजिए, लेकिन अपना मेडिकल करा के आइए। व्हाट डज दिस मीन? दे वांट टू चेक कितना एब्सेंट रहने वाले हो तुम, कितने बीमार हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो हाउ कैन वी हायर यू, बिकॉज़ यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव, और यू कैन से एफिशिएंसी आपकी होगी नहीं तो हम आपको नहीं रखना चाहते। सो quality of manpower is important. A sick labor without access to medical facilities is compelled to be absent from the work. So loss of productivity, loss of production, they don't want such kind of people. Therefore, expenditure on health is important to build and maintain productive labor force and to improve quality of life. फिर health में और क्या है? Adequate food and proper nourishment और health and sanitation. So Mr. Modi has done a wonderful job when it comes to sanitation facilities. 50% लोग ओपन में जाते थे तो टॉयलेट्स बनाए गए क्योंकि वो खुद के लिए भी बीमारियां ले आते हैं और लोगों के लिए भी छोड़ाते हैं। So sanitation facilities are very very important. So they give quality of life to humans. All right. फिर बोला तीन कितने तरह के? There are 5 types of forms of health expenditure जो आपको इसके अंदर याद रखना है। 5 तरह का है। प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव यानी प्रॉब्लम होने से पहले ही, जैसे वैक्सीनेशंस लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट फ्री में पुअर लोगों को वैक्सीनेशंस देती है सो दैट दे शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय द डिजीज व्हिच आर डेडली डिजीज व्हिच जनरली से। क्यूरेटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव समझ गए ना, क्यूरेटिव, अब हो गई है प्रॉब्लम तो क्योर करना है, उसके लिए दवाइयां, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। मेडिकल फैसिलिटीज ड्यूरिंग इलनेस, देन सोशल मेडिसिन, ये सारा कोविड से कनेक्ट कर लो, बड़ा अच्छा रहेगा। अभी वैक्सीन तो चलो आया नहीं हमारे पास, प्रिवेंटिव तो नहीं है, क्यूरेटिव भी आ रही है, मलेरिया वाली दवाई हमारे काम आ रही है, हमने बड़े देशों को भेजी है। देन सोशल मेडिसिन इज द मेन थिंग व्हिच इज वर्किंग एट दिस टाइम। दे आर टेलिंग यू, सोशली मेकिंग यू अवेयर, वॉश योर हैंड्स, डोंट गो आउट अननेसेसरली, स्टे अवे फ्रॉम पीपल, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। क्या है सोशल मेडिसिन? स्प्रेड अवेयरनेस, ओके। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हर एक घर में साफ पानी होना हो, ये गवर्नमेंट इंश्योर करती है क्योंकि साफ पानी पिएंगे तो हेल्थ भी ठीक रहेगी। एंड लास्ट इज सैनिटेशन फैसिलिटीज। These are the kind of expenditure which department makes to make people healthy when it comes to expenditure on health. Is it okay? So rest we will record in the next video. Bye bye. Take care.